انگلی مبارک زمین پر رکھے، صحابہ پیاسے پیاسے تڑپنے لگے، ہمارا نبی انگلی مبارک زمین پر رکھے، ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے۔ بلکہ ایک بات کہہ رہا ہوں، دل خوش ہو جائے گا، سبحان اللہ بولو گے انشاءاللہ۔ ہمارا نبی وہ نبی، بولو بولو، ہمارا نبی وہ نبی، مکہ میں پانی نہیں، بولو مکہ میں، آواز نہیں آ رہی، بولو نا مکہ میں، سارے مکہ کے چودھری، سارے مکہ کے رئیس کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے، ایک کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے، ایک کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے، مگر پانی کا نام و نشان نہیں۔ قربان جاؤ ہمارے نبی آ گئے، توجہ، قربان جاؤ ہمارے نبی آ گئے۔ مکہ والوں سے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کعبے کی دیوار پکڑ کے پانی مانگ رہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اقول قولا امطر اللہ السماء۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے مکہ والوں ہٹ جاؤ، ایک بات کہوں گا، اللہ آسمان سے ابھی پانی برسا دے گا۔ چلچلاتی گرمی ہے اور ہمارے نبی کہہ رہے ایک بات کہوں گا۔ مکہ والوں نے کہا کہو نا محمد، کہو نا، اوپر والا پانی برسا دے وے، ہمارے تو جانور بھی مر رہے ہیں، بچے بھی تڑپ رہے ہیں، مکے میں پانی نہیں ہے، آپ کہو نا، ایک مرتبہ کہو اللہ پانی برسا دے گا تو بہت اچھا۔ ہمارے آقا نے فرمایا ضرور کہوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، اے مکہ والو تم پیچھے رہو گے، میں آگے رہوں گا۔ اے مکہ کے چودھری ہو، مکہ کے رئیس ہو، آج تم پیچھے رہو گے، میں آگے رہوں گا۔ ارے مکہ کے سارے لوگ پیچھے ہو گئے، ہمارے نبی آگے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب دکھا دیا، سب کو مقتدی بنا دیا، تجھے ساروں کا امام بنا دیا۔ سارے مکہ والے کہاں ہیں؟ آواز سے بولو نا، پیچھے۔ اور وہاں سے کہہ رہے محمد ہم پیچھے ہو گئے، آپ کو تو آگے کر دیا، پانی تو آیا نہیں، چلچلاتی گرمی ہے، بچے تڑپ رہے، کہو نا، تم نے کہا تھا ایک بات کہوں گا، اللہ پانی برسا دے گا۔ ہمارے نبی نے یوں پیچھے دیکھا، کہا واللہ لا اقول شیئا، قسم اللہ کی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا میں کہوں گا اللہ پانی برسا دے گا، تو ہمارے نبی نے فرمایا اب تک تم لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ تم لوگ یہاں کیا کہہ رہے تھے؟ تو ہم کہہ رہے تھے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں بھی کہوں تم بھی کہے تو تمہارے اور میرے میں پھر ڈیفرنس ہی کیا رہے گا؟ میں بھی کہوں تم بھی کہے، ہمارے درمیان میں فرق کیا رہے گا؟ اور سارے مکہ والے غیظ و غضب میں لال ہو گئے، غصے میں لال ہو گئے، اور کہا محمد یہ تو ہماری عزت کا سوال ہے، ہم کو پیچھے کر دیا، تم آگے ہو گئے، اور کہتے ہو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ہمارے نبی نے پھر کہا نہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ کہا پھر آپ تو کہہ رہے تھے کہوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، سب میری طرف دیکھو، سب میری طرف دیکھو۔ سارے مکہ والے کرے تو کیا کرے، پانی کا معاملہ تھا، کھڑے ہو گئے، کہا لو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بس میرا چہرہ دیکھتے جاؤ، میں چہرے کو اٹھاتا جاؤں گا، اللہ آسمان سے پانی برساتا۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن سبحان اللہ بول دو نا، سبحان اللہ۔ بات پوری ہوگی تو میں ہی نعرہ لگوا دوں گا آپ کے لیے، لیکن آپ پوری توجہ دینا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے چہرے کو دیکھتے رہو۔ قربان جاؤ میرے پیارو، سنتے جانا اور سبحان اللہ بولتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ، بولو سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا چہرے انور تھوڑا سا اٹھایا، تھوڑا سا چہرے انور اٹھایا، اللہ کی قسم آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ چہرے انور اور اٹھایا، رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا۔ سنتے جانا۔ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ پورا چہرے انور آسمان کی طرف اٹھا لیا، پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا، دھوم دھام سے پانی برسنے لگا، مگر اللہ کی آواز آئی میرے محبوب
बता देता, मैं पानी बरसा देता। उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। हसफल कमरो बिजमालिही। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये वाकया अल्लामा रूमी ने बयान किया और उसके बाद जो शेर पढ़ा है ना, इस शेर पर आपको ख्वाब में जन्नत का वादा मिला है। अल्लामा रूमी को ये शेर पर ख्वाब में जन्नत का वादा मिला। हम भी पढ़े सुने, अल्लाह हमको भी जन्नत अता फरमाए। अल्लामा रूमी फरमाते, हसफल कमरो, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़े ना, हसफल कमरो बिजमालिही नतकल अजरु बिजलालिही अब युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सल्लु अलैहि वालिही बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। वाकया सुना ना आपने? मैं वाकया सुना ना? चेहरे अनवर को उठाया, अल्लाह ने आसमान से पानी, और अल्लाह ने कहा महबूब तकलीफ क्यों उठाई, चेहरे अनवर क्यों उठाया? उंगली भी बता देता, मैं पानी। तो अब तो बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी होगा? नहीं, बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी होगा? तो तारावी वालों आ जाओ पॉइंट पर। मुस्तफा का दामन, यानी पूरा मजमा मुस्तफा का दामन। एक मर्तबा बोले नारे तकबीर, पूरा मजमा बोले मुस्तफा का दामन। मुस्तफा मुस्तफा का दामन, मुर्तजा मुर्तजा का दामन, मुजतबा मुजतबा का दामन। अरे साथ में बोलो मोहम्मद का दामन, मुस्तफा का दामन, गौस पाक का दामन। बराबर, बिल्कुल फाइनल, बिल्कुल फाइनल ना? ये जुमला मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मौलाना सिराज माफ करना अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो चाहता हूं कि जितना हो सके मैं ये आवाज दूं। बोलो ना, ये आवाज दो, मुस्तफा का दामन, गौस पाक का दामन। अभी मैं आपको मुस्तफा का दामन और गौस पाक का दामन बता रहा हूं, फिर वापस नारा लगाएंगे ना इंशाअल्लाह। अरे एक मर्तबा हमारे आका, सुनते जाना, तवज्जो तवज्जो, पूरी तवज्जो देना। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो ना सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, हम बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अरे हमारे नबी, अल्लाह की कसम, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अरे हमारे नबी अबू बकर को मोहब्बत से देखे, अल्लाह सिद्दीक बनाते हुए। हमारे नबी मोहब्बत से उमर को देखे, अल्लाह फारूक बनाते हुए। हमारे नबी मोहब्बत से उस्मान को देखे, अल्लाह जुल्नुरैन बनाते हुए। हमारे नबी मोहब्बत से अली को देखे, अल्लाह शेर खुदा बनाते हुए। हमारे नबी मोहब्बत से अबू हुरैरा को देखे, अल्लाह हाफिज हदीस बनाते हुए। अरे हमारे नबी मोहब्बत से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को देखे, अल्लाह मुफस्सिर कुरान बनाते हुए। अरे हमारा नबी मोहब्बत से बिलाल को देखे, अल्लाह उस हबशी को जन्नत का ठेकेदार बना दे। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरी तवज्जो, आपकी पूरी तवज्जो। एक मर्तबा हमारे आका, बोलो बोलो, एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साथ में हजरत उमर है। साथ में कौन है? हजरत उमर साथ में। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ जा रहे हैं। बोलो किसकी तरफ जा रहे हैं? कुछ काम होगा, जा रहे हैं जंगल की तरफ। साथ में कौन है? तवज्जो, साथ में कौन है? हजरत उमर। हमारे आका साहब जंगल की तरफ जा रहे हैं। अचानक दूर एक इंसान को देखा, उठनी पे बैठ के आ रहा है। उस जमाने में ऊँट उठनियां चलती थी, उठनी पे बैठ के आ रहा है और सर पर बड़ा पगड़ है। यानी इसका मतलब है वो जंगल का रहने वाला है, वहीं का रहने वाला, और जंगल की तरफ से आ रहा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा, उमर उमर। हजरत उमर ने कहा क्या हुआ अल्लाह के रसूल? कहा उन्जुर ज़ालिका रजुल। हमारे नबी ने कहा उमर देखो देखो, दूर देखो। हजरत उमर ने यूं देखा, कहा अल्लाह के रसूल, ओ आ रहा है एक आदमी, उठनी पर आ रहा है और उसके चेहरे से लगता है कि वो जंगल का रहने वाला है। बद्दू है, बद्दू, आराबी। बद्दू यानी आराबी, देहाती है, जंगल का रहने वाला। उसका पगड़, उसका कपड़ा बताता कि वो जंगल का रहने वाला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर, मैंने इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ी तुम्हें पूछा, मैंने तो ये कहा कि वो नजर आया। हाँ अल्लाह के रसूल नजर आया, मेरे को दिखा। अल्लाह के रसूल ने कहा चलो कलमे की दावत देवे ला इलाहा। मेरे प्यारों, कलमे की दावत देवे ला इलाहा। और अल्लाह की कसम, इससे बढ़कर कोई मुसलमान नहीं होगा जो कलमे की दावत देता होगा। किसकी दावत देता होगा? अल्लाह ने फरमाया सबसे
चलो उनको कलमे की। हज़रत उमर ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, वो जाहिल है, देहाती है, बद्दू है, आराबी है, उसको कोई समझ वमझ नहीं है, आप उसको कलमा बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, वो ऐसा जंगल का रहने वाला है, आपको गालियां देगा, अरे मारेगा और बहुत खराब गालियां देगा। ये जंगल के रहने वाले ये अच्छी बात नहीं लाते जबान पर, ये बहुत गंदी गालियां बोलते हैं। हमारे नबी ने उमर की तरफ देखा, आंखों में आंसू थे, मुझे गाली देगा, वो मुझे गाली देगा, मारेगा। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, फरमाया बर्दाश्त करूंगा, बर्दाश्त करूंगा, मुझे ये गवारा है कि मुझे गाली देवे, मुझे ये गवारा है कि वो मुझे मारे, मगर ये गवारा नहीं कि मेरा उम्मती जहन्नम में चला जाए, मेरा उम्मती जहन्नम में चला जाए, ये मुझे गवारा। बल्कि हमारे नबी ने जो कहा उसकी तर्जुमानी कर रहा हूं कि हमारे नबी ने फरमाया उमर तूने तेरी आंखों से देखा, तुझे देहाती नजर आया, तुझे जंगल वाला नजर आया, मैंने मेरी आंखों से देखा, मुझे मेरा प्यारा उम्मती नजर आया, मुझे मेरा प्यारा उम्मती नजर आया। बस जैसे हमारे नबी ने ये कहा, और फिर हमारे नबी ने कहा उमर अगर तुम्हें डर लगता है तुम मत आओ, मैं अकेला जाऊंगा। हज़रत उमर ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, ये तो हो नहीं सकता कि आप अकेले जाएं, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। गए, बोलो वो सामने आने वाला किस पर बैठा हुआ था? उठनी पर बैठा हुआ था। हमारे नबी ने जाकर रस्सी को पकड़ा और जाकर प्यार से कहा कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह। और साथ में हमारे नबी ने कहा कोई माबूद नहीं, अल्लाह माबूद है, मैं अल्लाह का रसूल, मैं अल्लाह का नबी। हज़रत जिब्राइल मेरे पास आते हैं, कुरान मुझ पर उतरता है। वो देहाती था, उसने जैसे कहा अंत मोहम्मद, तुम मोहम्मद हो? हमारे नबी ने कहा हाँ मैं मोहम्मद। वो देहाती ने आंख निकाला और कहा तुम्हारे बारे में सही बातें मैं नहीं सुना हूं। और वो देहाती ने कहा रस्सी छोड़ो, मेरे उठनी को जाने दो, हम ऐसों से बात भी नहीं करते, हमको आगे जाने दो। हमारे नबी ने रस्सी को थाम लिया, अल्लाह के वास्ते कलमा पढ़ ले, मुझे गाली देना दे दे, अरे मुझे मारना है तो मार ले, अरे थूकना हो तो थूक ले, लेकिन मेरा उम्मती कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। वो नीचे उतरा, भाई उसने कोई ऊँट ऊँट को बिठाया नहीं, ऐसे ही छलांग लगाया, नीचे उतरा और कहा मोहम्मद हट जाओ और शुक्र मानो कि मेरे पास तलवार नहीं है वरना कत्ल कर देता, शुक्र मानो मेरे पास तलवार नहीं वरना कत्ल कर देता। बाजू में कौन थे? उमर ने हमारे नबी के कान में कहा अल्लाह के रसूल उसके पास नहीं है, मेरे पास है, बोलो तो अभी दो टुकड़े कर दूं इसके। उमर तो उमर थे ना, अब बोलो तो अभी दो। हमारे नबी ने हज़रत उमर की तरफ देखा, महलन यार उमर, उमर खामोश खामोश, क्यों बीच में बोल रहे हो, खामोश। फिर हमारे नबी ने उससे कहा कलमा पढ़ लेना। अब तो नीचे आ गया था, उसने कहा अच्छा मैं कलमा पढ़ूं। हमारे नबी ने कहा यही तो चाहता हूं, कलमा पढ़ ले और कुछ नहीं चाहता। वो गुस्से में वापस उठनी पर गया, बोलो गुस्से में उठनी पर गया और इतना बड़ा कोथड़ा, वो कपड़े का कोथड़ा होगा, वो लेके जमीन पे फटका, कहा मोहम्मद इसमें मरा हुआ जानवर है, मैंने शिकार किया, पूरे खून में लथपथ जानवर है, जिंदा कर दो कलमा पढ़ लूंगा। बोलो ना जिंदा कर दो कलमा। हज़रत उमर वापस आ गया है, कहा है हज़रत उमर ने कहा है मेरे नबी मुर्दे को जिंदा करने के वास्ते नहीं आए, मेरे नबी हिदायत लेकर आए, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत उमर ने सही कहा ना, मेरे नबी इस्लाम लेकर आए, ईमान लेकर आए, हिदायत लेकर आए, मेरे नबी मुर्दा को जिंदा करने के वास्ते। अल्लाह ने भी यही कहा, पढ़ो मेरे साथ में सब पढ़ेंगे, अल्लाह ने भी यही कहा। हमारे नबी का आने का मकसद क्या है? अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला-द्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मैंने मेरे नबी को हिदायत के वास्ते भेजा, इस्लाम के साथ भेजा, ईमान के साथ भेजा। हज़रत उमर ने वो देहाती से कहा तू देहाती, तुझे नहीं मालूम मेरा नबी हिदायत लेकर आया, मेरा नबी मुर्दे को जिंदा करने के वास्ते। हमारे नबी ने फिर उमर को देखा, उमर तुम फिर बीच में आए, महलन या उमर, उमर तुम किनारे पे रहो। फिर हमारे नबी ने फरमाया क्या कहा तुमने? कहा ये जानवर है, मैं शिकार करके आया, मुर्दा है, जिंदा करो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर की तरफ इशारा किया और कहा जिस अल्लाह ने तुझे पैदा किया आज उसी अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं तू अल्लाह का वास्ता है, जिंदा हो जा। ए मेरे धारावी वालों, वो कोठड़े में पड़ा हुआ मुर्दा जानवर नबी के इशारे पर जिंदा होके बाहर आ गया।
जैसा नबी के इशारे पर जिंदा होकर बाहर है। हजरत उमर तो ताज्जुब में थे, लेकिन वो कौन, वो कौन, वो तो और ताज्जुब में कहा जिंदा हो गया मोहम्मद, ये तो सही में जिंदा हो गया। अब हमारे नबी ने फरमाया अब तुझे कुछ नहीं बोलना है, तेरा बोलने का टाइम, अब तुझे कुछ नहीं बोलना है। अब ये जानवर बोलता जाएगा, हम सुनते जाएंगे। हमारे नबी ने उस जानवर को जो जिंदा हुआ, हमारे नबी ने फरमाया उस अल्लाह का वास्ता जिसने तुझे दोबारा जिंदा किया, ये बता मनिल्ला, ये बता अल्लाह कौन है। हमारे नबी ने जानवर से पूछा बता अल्लाह, जोर से जोर से जोर से। वो जानवर 4 जुमले बोला। ये पूरा मजमा बोलो ना कितने जुमले बोला। काश कि हमको मालूम होता कि अल्लाह कौन है। बोलो बोलो बोलो, काश कि हमको मालूम होता अल्लाह कौन है। वो कौन बोल रहा है, अरे बोलो कौन बोल रहा है, क्या कितने जुमले बोल रहा है, 4 जुमले। उसने पहला जुमला बोला, उसने उस जानवर ने कहा तुमने मुझे पूछा अल्लाह कौन है, वो 4 जुमले बोला। पहला जुमला अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्ज़ि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु। बोलो सुभान अल्लाह, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह। वो जानवर को हमारे नबी ने पूछा बता दे अल्लाह कौन है, बता दे अल्लाह कौन है। जानवर ने पहला जुमला बोला अल्लाह वो अल्लाह है, हमारा अल्लाह वो अल्लाह है जिसका अर्श आसमानों पर है। नंबर 2 अल्लाह वो अल्लाह है जिसका कंट्रोल 7 जमीनों पर है। अरे अल्लाह वो है जिसने समंदरों में भी रास्ते बना दिए हैं। और आखिर में वो जानवर ने कहा अल्लाह वो अल्लाह है जिसने जन्नत में अपनी रहमत को निछावर कर दिया। कितने जुमले बोला, बोलो ना कितने जुमले बोला, अरे बोलो ना जानवर कितने जुमले बोला। बाजू में कौन था इधर, बेहती कहने लगा है जानवर जिंदा भी हो गया, अब बोलने भी लगा। हमारे नबी ने कहा अब तुम नहीं बोलोगे, अभी तो इसने ये बताया कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की कसम। अब ये बताएगा मोहम्मद कौन है, ये बताएगा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, ये बताएगा मोहम्मद है कौन है। जैसे हमारे नबी ने उसकी तरफ इशारा किया, बता दे मोहम्मद कौन है, मन अना, मैं कौन हूं, बता दे। वो जानवर ने अपने चेहरे को ऊपर किया, गर्दन को ऊपर किया, और जिस खुदा के बारे में उसने 4 जुमले बोला, मोहम्मद के बारे में भी 4 जुमले बोला। बोलो ना हमारे नबी के बारे में कितने जुमले बोला। और मैं चाहता हूं हर जुमले पर हम अल्लाह अकबर बोलेंगे इंशाअल्लाह। वो जानवर ने पहला जुमला बोला या मोहम्मद अंत रहमतुल लिल आलमीन। वो जानवर बोला ए अल्लाह का नबी, ए अल्लाह का नबी, अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए तुम्हें रहमत बनाकर भेजा है। हमारे नबी को रहमत रहमत बनाकर अल्लाह ने भेजा है। पहला जुमला। दूसरा जुमला तो गजब का बोला वो जानवर, बोला क्या बोला, अंत सय्यदुल मुरसलीन। वो जानवर बोला अल्लाह का नबी, अल्लाह ने सारे के सारे नबियों को मुक्तदी बनाया, अल्लाह ने तुम्हें तमाम नबियों का इमाम बनाया है। हमारे नबी सारे नबियों के, बोलो ना हमारे नबी सारे नबियों के इमाम। कितने जुमले हो गए, तीसरा जुमला। कह देना अल्लाह अकबर कह देना। वो जानवर ने तीसरा जुमला कहा या मोहम्मद क़द अफ़लह मन सद्दक़ता, या मोहम्मद क़द अफ़लह मन सद्दक़ता। वो जानवर बोला है मेरा प्यारा नबी, जिसने मुस्तफा का दामन थामा वो कामयाब हो गया। बोलो ना मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। वो जानवर बोला जिसने मुस्तफा का दामन थामा वो कामयाब हो गया। और आखिरी जुमला बोला वक़द ख़ाबा मन कज़्ज़बता। ए मोहम्मद जिसने तेरे दामन को तोड़ दिया वो बर्बाद हो गया। वो ए मेरे प्यारों, वो जानवर ने हमको बहुत बड़ी बात बोली, जिसने मुस्तफा का दामन थामा वो, आवाज से बोलो ना, मेरा भी वक्त खत्म हो रहा, बोलो ना, जिसने मुस्तफा का दामन थामा वो।
कामयाब हो गया, और जिसने मुस्तफा का दामन छोड़ा वो बर्बाद हो गया। साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। जब इसने ये 4 जुमले बोले ना तो देहाती कौन था वो करीब आया कि हमारे नबी के पाँव को छू लेता। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, आ जाओ, कलमा पढ़ोगे ना? हाँ कलमा पढ़ूंगा। यहाँ कौन थे? उमर। हमारे नबी ने कहा था उमर को कहा इधर आ जाओ, सीने से लग जाओ। उनको कहा तुम इधर लग जाओ। हमारे नबी ने इन दोनों को सीने से लगाया और पूरे जंगल में आवाज बुलंद हो गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पूरा मजमा बोले ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मोहब्बत करते हो नबी से? करते हो तो बुलंद आवाज से बोलो ना, मुस्तफा का दामन। एकदम बुलंद आवाज से, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। मोहब्बत करते हो? हाँ या नहीं? जोर से करते हो? अरे ऐसा ना बोले धारावी वाले कि बंबई में धारावी पहली मर्तबा आया, वरना मेरी आदत ऐसा जवाब सुनने की नहीं। ऐसा जवाब दे, मुस्तफा से मोहब्बत करते थे। बोलो बोलो, मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते थे और करते। बात पक्की इंशाल्लाह? नहीं बिल्कुल बात पक्की। हाँ मेरे दोस्तों, मुस्तफा का दामन, गौस पाक का दामन। मेरे दोस्तों ये गौस पाक है ना, कौन? पीराने शेख अब्दुल कादिर। हम लोग कितना आराम से बाहर चिल्लाते ना, और आप लोग तो अभी बहुत अच्छा माशाल्लाह, मैं बोलते जा रहा हूँ आप चिल्लाते जा रहे हो। बोलो ना, गौस पाक का दामन। ये मैंने क्या किया? क्या किया? अरे बोलना भाई, मैंने कोई लॉजिकली काम थोड़ी किया। क्या किया मैंने? माइक को, मैंने माइक को, अब मैं बोलूं मैंने माइक पकड़ा, अब ये कारी अहमद अली माइक नहीं छोड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ बात बराबर है, पकड़ा है। आप बोलेंगे बात बराबर है, इसने माइक पकड़ा है, और मैं बोल रहा हूँ माइक नहीं छोड़ूंगा। आप अंदर अंदर से बोलेंगे भाई पकड़ा है नहीं छोड़ेगा। मालूम है कोई चीज को छोड़ने से पहले गौस पाक का दामन पकड़ा, गौस पाक का दामन थामा। कौन थे? पीराने पीर। सबसे बड़ी बात आज ये है कि हमको आज तक यही नहीं मालूम है कि इनको गौस पाक क्यों कहते हैं। गौस किसको कहते हैं? अरे मेरे दोस्तों, ये उलमा किराम से पूछो, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ गौस? गौस का मतलब क्या होता है? अरे इंसान कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है, सबसे पहले उसको लेवल मिलता है, ये मुस्लिम हो गया। उसके बाद और आगे कलमा पढ़ता है, वो मोमिन हो गया। उसका कलमा और तरक्की करता है, वो मोहसिन हो गया। और आगे तरक्की किया, वो वली हो गया। और आगे तरक्की किया, वो सूफी हो गया। और आगे तरक्की किया, वो कुतुब हो गया। और आगे किया, वो अब्दालों में से अब्दाल हो गया। और आगे गया, अल्लाह ने उसे गौस के मकाम तक पहुंचा दिया। ये है गौस का मकाम। आपको मालूम है 15 साल तक, बोलो 15 साल तक, फिर बोलो, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 15 साल तक। किताबें पढ़ो मेरे प्यारों, किताबें पढ़ो। मैं तो रबीउल आखिर महीना, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये रबीउल आखिर महीना जब से शुरू हुआ, मैं गुजरात में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 4-4 घंटे हम बातें कर रहे हैं। 800 सफ़े मैंने गौस पाक पर पढ़े हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ, पढ़ने के बाद मैं ये नतीजे पर पहुंचा कि कयामत में जब अल्लाह कहेगा जन्नत का फैसला करेगा, हम अल्लाह से एक तमन्ना ये भी करेंगे, एक बार शेख अब्दुल कादिर का दीदार करवा दे कि उनकी पेशानी को चूम ले। कौन है पीराने पीर? 15 साल तक, फिर बोलो 15 साल तक ईशा के वजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी है, और हर रात में एक कुरान पाक का खत्म किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर रात में कुरान पाक का खत्म किया है। आपका विसाल ये महीने में हुआ। पैदा कब हुए? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा विलादत कब हुई? सुनो, ये नहीं मालूम होगा, जिस आसमान पर रमजान का चांद आया उसी जमीन पर अब्दुल कादिर चांद आया। रमजान की पहली रात इनकी वालिदा बीबी फातिमा, पीराने पीर की वालिदा बीबी फातिमा फरमाती है, आसमान पर रमजान का चांद आया, मेरे घर में अब्दुल कादिर पैदा हुआ। मैं कहता आसमान पे
की वालिदा कहती है सहरी से लेकर इफ्तारी तक दूध पिलाओ तो पीवे नहीं, सहरी से लेकर इफ्तारी तक दूध नहीं पिए और इफ्तारी से लेकर सहरी तक दूध पिए। बीबी फातिमा माँ कहती है उम्मत का पहला बच्चा जो पैदा होते ही रमजान के रोजे रखता है। ये है पीराने पीर। और एक बात बताऊं, सुनना, तवज्जो देना, मैं बयान कर रहा हूं, मैं तकरीर कर रहा हूं। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा तकरीर कर रहे थे। 30,000 का मजमा कितना? 30,000 का मजमा, जिसमें 20,000 आगे बैठे हैं, बीच में पहाड़ है, पहाड़ के पीछे 10,000 बैठे हैं। अरे 30,000 के मजमे को खिताब करते हैं, 20,000 पहाड़ के इस तरफ, 10,000 पहाड़ के उस तरफ, लेकिन पहली सफ वाला बोले और आखिरी सफ वाला बोले। जिस अंदाज में पहले ने सुना है, आखिर वालों ने भी वही आवाज में सुना है। एक मर्तबा आप बयान कर रहे थे, बारिश हुई, क्या होता है बारिश होती तो क्या हो गया? मजमा। अरे अभी 2 मिनट लाइट गई, कैसा हंगामा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ हंगामा? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे, बयान शबाब पर है, आसमान से बारिश बरसने लगा, पानी बरसने लगा, मजमा इधर उधर होने लगा। पीराने पीर ने खड़े खड़े हाथ उठाकर कहा अल्लाह अल्लाह तेरे बंदों को तेरे वास्ते जमा कर रहा हूं, अल्लाह तेरे बंदों को तेरे वास्ते, अपने वास्ते नहीं, अल्लाह जमा कर रहा हूं और तेरे और मदीने वाले की बातें सुना रहा हूं, अल्लाह तेरी और मदीने वाले की बातें सुना रहा हूं, अल्लाह तेरे वास्ते तेरे बंदे जमा हुए और अल्लाह तू उनको भगाता है। बोलो बारिश नहीं रुकी, बोलो बारिश नहीं रुकी। मगर ये 30,000 का मजमा बैठा है, इधर देखो राइट में पानी बरस रहा है, लेफ्ट में पानी बरस रहा है, पीछे बैक की तरफ देखो पानी बरस रहा है, आगे फ्रंट में देखो पानी बरस रहा है, मगर 30,000 का मजमा बैठा, अल्लाह की कसम एक पानी का कतरा भी इनके ऊपर नहीं आता। ये है कौन? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर। अब बताओ ना, गौस पाक का दामन, मुस्तफा का दामन, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मैं फिर वो बात पे आ जाऊं, मोहब्बत करते हो तो एकदम साफ सुथरे अल्फाजों में बोलो ना, तो मेरे को बार बार पूछना ही ना पड़े। बोलो ना मोहब्बत करते हो, बोलो ना मोहब्बत करते और करते, इसलिए कि हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। सिराज एक बात दोहरा दूं वापस, यहाँ पहली मर्तबा आया हूँ, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा और मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये जितने बच्चे बैठे मेरे को लगता है सब लोग तख्ती पढ़ते होंगे, अलीफ बा ता सा पढ़ते ना, तो मेरा साथ दोगे ना? ये तो नहीं दे रहे, तुम तो दे दो। अब आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे अच्छी जबान, भाई मैं पूरे मजमे को पूछ रहा हूँ, कोई जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा रहा हूँ कि फर्ज किफाया अदा करना है, ये तो मेरे पर भी जरूरी, आप पर भी जरूरी। बोलो ना सबसे अच्छी जबान, आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल पक्की बात बोलो, सबसे अच्छी जबान। अरे अल्लाह की कसम सब जबानें अच्छी है, सब जबानें अच्छी है, मगर सबसे अच्छी जबान, क्योंकि सारी जबान जमीन वाली है और ये जबान सबसे अच्छी जबान कौन सी? क्यों देखो फटाफट जवाब देते जाना। सबसे अच्छी जबान अरबी जबान, आप लोग अरबी बोलते जाना भाई। सबसे अच्छी जबान इसलिए कि कुरान की जबान, जल्दी जी कुरान की जबान, हदीस की जबान है, नबी की जबान है, अल्लाह को पसंदीदा जबान है, मक्का वालों की जबान है, मदीना वालों की जबान, सहाबा की जबान, औलिया की जबान, अरे कुरान की जबान, हदीस की जबान, अरे मेरे प्यारो खबर की जबान, हशर की जबान, नशर की जबान, उल सिरात की जबान। अरे कह दो जन्नत में जाओ तो जन्नत की जुबान अरबी अरबी अरबी। अरबी के ऊपर कोई अच्छी जबान? अरबी शुरू कहां से होती है बच्चे बोलेंगे? अलिफ, खत्म किस पर होती है? माशाअल्लाह। अरबी जबान शुरू होती है, मजमा बोलो ना, बच्चे बोल लिया, बोलो। अरबी जबान शुरू होती है, अरबी जबान स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन, शुरू होती है अलिफ पर, अरबी जबान खत्म होती है यहाँ पर। पढ़ो मेरे साथ में, अलिफ अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा दा सीन शिन सा ज़ा ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। ये बच्चों सही पढ़ा? पास मैं पास हूँ।
یہ عربی زبان کا الفابیٹ، بولو نا عربی زبان اسٹارٹ فرام اینڈ آن، یہ عربی زبان ہو گئی. ہاں یہ عربی زبان ہو گئی. اب ساتھ میں بولو عربی زبان کے اوپر کوئی زبان، عربی یہ سمجھو یہ عربی زبان، اس کے اوپر کوئی زبان. کیوں؟ اب سنتے جانا. آپ کو بتایا عربی زبان بہت اونچی زبان ہے. اس کا ہر حرف الف سے لے کے یا تک، آپ الف سے شروع کرو یا پہ ختم کرو، ہر حرف میں مصطفیٰ کا نام ملے گا، ہر حرف میں مصطفیٰ کا نام ملے گا. کیوں ملے گا؟ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ عربی زبان ہے، اس کے اوپر کوئی زبان نہیں، اس کے ہر حرف میں مصطفیٰ کا نام ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ بھائی سمجھ گئے کہ پھر سمجھاؤ؟ عربی زبان کے اوپر کوئی زبان، اس کا کوئی بھی حرف پک اپ کرو، you will find the name of Mustafa. You will find the name of Mustafa. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر عربی زبان اس کے اوپر کوئی زبان نہیں ہے تو مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ. الف سے لے کر، الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. بتاؤ نبی کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں بولو نا نبی کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ خود اللہ نے ہمارے نبی کو احمد کہا ہے. ارے بولو نا، کہا نا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. الف سے بولو ہمارے نبی کا نام، با 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 سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بولو با سے ہمارے نبی کا نام قَدْ بات سے ہمارے نبی کا نام. الف سے لے کے یا تک چلے جاؤ، ہر حرف میں مصطفیٰ کا نام ہے، تاکہ امت کو پتا چلے عربی زبان پر کوئی زبان نہیں، میرے مصطفیٰ پر کوئی مصطفیٰ نہیں. الف الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا. بولتے جاؤ الف سے ہمارے نبی کا نام، با سے ہمارے نبی کا نام بشیر ہو گیا، تا سے ہمارے نبی کا نام تنویر ہو گیا، سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا، جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا، ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا، خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا، دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا، زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا، را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا، زا سے نبی کا نام ذاکر بیت اللہ ہو گیا، سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا، صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا، ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا، تو سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، عین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا، کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا، لام سے نبی کا نام لعیق ہو گیا، میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا، نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، واو سے نبی کا نام والی ہو گیا، ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا، حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا، رہ کے یا سے نبی کا نام یاسین 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 ہو گیا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب تو میرے کو بتاؤ نا، محبت کرتے ہو نا؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت نبی تو وہ ہے. سنو سنو سنو، بتاؤ نا بتاؤ. اللہ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. علماء کرام بیٹھے سن رہے ہیں، ٹینشن میں تو نہیں نا کوئی؟ بولی سراج تو دور نکل گیا تو بچ گیا. میں آپ سب لوگوں نے کھانا تو کھا لیا نا مولانا؟ آپ ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتے تھے. اللہ آپ کی نعت پاک کو قبول فرمائے، نظم کو قبول فرمائے. اس عمر میں جب یہ عالم ہے تو جوانی میں آپ کا کیا عالم ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے دوستو آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی تو میرے کو ہمیشہ ٹینشن لیتا ہے. میں اب ٹینشن بول دوں، تب سے میں بولا نہیں ہوں، اندر اندر گھٹے جا رہا ہوں. بولو. آپ لوگ گھر میں کچھ نہیں بولتے بھائی. اب بچے تم نہ بولو، تمہارا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے. مولی سراج والا کام ہے. گھر میں کچھ نہیں بولتے آپ لوگ. دیکھو بچے کتنے ہوشیار ہیں. بچہ خود بول دیا میرا ابا کچھ نہیں بولتا گھر میں.
वो तो नजर आता है, बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं, नजर आता। एक था ना, एक शोहर था अपनी बीवी से बहुत परेशान। आप लोग हो? देखो कैसा एक दूसरे का मुंह देखते हैं, कैसा दाल में काला नजर आता है। क्या अमित भाई सही कह रहा हूँ? ये भी देखो माशाल्लाह कितना हट्टा कट्टा मोटा बीवी से डरे। अरे बोले एक आदमी बीवी से बोली सिराज क्यों? हिम्मत वाला है, बीवी को घर भेजा, इससे बढ़ के हिम्मत वाला कौन होगा? हाँ मौली रेहान, हम ये काम तो हम कभी नहीं कर सके जो मौली सिराज। अरे बोला ना भाई, एक आदमी बेचारा बीवी से डरता, बहुत झगड़ा बहुत झगड़ा बहुत झगड़ा बहुत झगड़ा, अल्लाह बचाए, इतना झगड़ा बेचारा थक गया। अरे थक गया, धारा भी का थका, क्या करे क्या करे। एक दिन तो बस देखा कि बीवी से बहुत झगड़ा हुआ, अपने घर में गया, वजू किया, मिसवाक किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ा, कहा अल्लाह मेरे को उठा ले। ये थका, बीवी की रोज रोज खटखट से थका, अल्लाह मेरे को। ओ बीवी भी धारा नहीं की। आपके कहाँ के बोल रहे हैं? मतलब बम्बई ना सब एक ही। बीवी ने देखा दुआ पड़ता है, अल्लाह मेरे को उठा ले। अरे फटाफट उसने भी वजू किया, उसने भी मिसवाक किया, अरे फटाफट 2 रकात नमाज, और उसने भी रोना शुरू किया, अल्लाह मेरे को उठा ले। और औरतों को तो रोना वैसे भी जल्दी आता, मर्द बेचारा थक जाता तो आंसू का कतरा नहीं निकलता, और औरत को तो ऐसा लगता आंसू की टंकी सर पे फिट, फटाफट फटाफट रोना, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले। इतना जोर जोर से रोए, अल्लाह मेरे को उठा ले। इसने सुना, कौन? शोहर ने सुना, अल्लाह सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अल्लाह मेरी नहीं उसकी सुन ले। समझे नहीं समझे आप लोग? इसीलिए मौली सिराज ने भेज दिया भाई। आप लोग हंसे ना, आप लोग सुनते होंगे कि कारी साहब ने बीच में क्यों हंसाया? मैं हंसाया नहीं, तवा गरम किया, रोटी पकाने आ रहा हूँ। मौलवी लोग बहुत होशियार होते हैं, है ना मौलाना? ओ मौलाना, मौलवी लोग बहुत, मैं कहता कभी मौलवी को छेड़ने का नहीं, छोड़ेगा नहीं। मौलवी इतना होशियार होता, इतना होशियार होता। एक मतलब मालूम है, मौलाना खाने को चला गया, खाने को मौलाना। अब मेरे जैसा हो जिसको रोजाना खाना बाहरी मिलता हो, भाई जहाँ भी बयान करने जाओ तो खाना मिले। हाँ, अब मौलाना खाना खाने को गया। अब क्या हुआ, जल्दी में चला गया मौलाना, ऐसा थाल रखा था, थाल, अब उधर चावल, बोलो उधर चावल, इधर तंदूरी लेग पीस। अब मौलाना जल्दी जल्दी आया, और जहाँ चावल था वहां बैठ गया। बैठा थाल में, लेकिन इधर चावल है और उधर तंदूरी। मौलाना जल्दी जल्दी में आके बैठ गया, इधर कोई धारावी का जवान आके बैठ गया। अब मौलाना ने ये तंदूरी खा रहे, मौलाना चावल खा रहे। बहुत होशियार मौलाना। मौलाना ने क्या कहा, अपना धारावी में आजकल वेदर कैसा है, ठंडी वंडी होती कि नहीं होती, कि गर्मी है, और अपने गाँव में कैसा चलता है? वो बेचारा जवान बात करने लगा, मौलाना ने थाल घुमा दी, थाल घुमा दिया। थाल घुमाने के बाद गुस्से हुआ, कम बखत नालायक, खाने के वक्त पे बात करता, और बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। अब उसने भी बिस्मिल्लाह, लेकिन जैसा बिस्मिल्लाह कहा, मौलाना क्या हुआ? तंदूरी लेग पीस तो मेरी तरफ था। मौलाना ने कहा नालायक कम बखत, मालूम नहीं ये तंदूरी लेग पीस ये पाव किबले की तरफ था, मकरू खाता, हराम का खाता, शुक्र मान हमने इज्जत बचा ली। समझे नहीं समझे? ये सब अपने भी हंस रहे, इनको नहीं मालूम है इन पे आने वाला हूं। पहले अपने ऊपर हंसा लेता हूं ताकि सामने बोलूं तो किसी को खराब नहीं लगे, वो ना बोलते मौलाना मेरी इंसल्ट किया, इससे पहले अपनी इंसल्ट करवा लो ना। लेकिन सही में कभी कोई मौलाना का भी सवा शेर होता है, मौलाना शेर होता है ना, तो कोई एक मतलब भाई मौलाना गए, उसको मुर्गी खाने की इजाजत, किसकी? मेरे को भी कितने लोग बोलते हैं, मुफ्ती रेहान आप तो बराबर हो, मौली सिराज आप भी बराबर हो, ये मेरे को तो कितने लोग बोलते हैं मौलाना तो डाइटिंग काय को नहीं करता। कितने लोग मेरे को बोलते हैं, मैंने कहा काय की डाइटिंग? रोजाना मुर्गी तोड़े, वो काय की डाइटिंग? ये मुर्गी का कब्रिस्तान बना हुआ है। तो एक मर्तबा कोई मौलाना के भी सर का निकलता, कहाँ मौलाना गया, वो ये सोच कर गया खाने में क्या होगा, बोलो ना भाई, खाने में क्या होगा? मुर्गी। अब वो जैसा खाने के लिए बैठा, सबसे पहले भुर्जी आई। भुर्जी किसकी होती है? फिर थोड़ी देर में देखो तो आमलेट आया, वो भी किसका? अंडे का। फिर देखो तो हाफ फ्राई आया, वो भी किसका? अंडे का। फिर उबले हुए एग्स, उबले हुए अंडे आ गए। अब मौलाना ने सोचा ये तो खत्म हो गया, तो मौलाना ने उबला हुआ अंडा उठाया और कहा भाई घर का मालिक कौन है? आज कौन था? आज कौन? हाँ शरफुद्दीन भाई। कहा घर का मालिक कौन है? तो शरफुद्दीन ने कहा मैं घर का मालिक हूँ। तो मौलाना ने कहा ये अंडा इसकी माँ का है, माँ। तो शरफुद्दीन भी बड़ा
बहुत अच्छा लगता, आप लोग हंस रहे हो, बहुत अच्छा लगता। मैं मेरी पॉइंट पे आ जाऊं ना। मोहब्बत किसको कहते हैं? अच्छा एक मर्तबा भी कस के, अब तो आप मेरे हंसते हंसते मेरे हो गए, साथ में बोले ना मुस्तफा का दामन। मैंने पूरा मजमा बोले मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। मेरे दोस्तों मोहब्बत किसे कहते हैं? हम लोग नबी से मोहब्बत करते थे, करते और करते। अरे कसम खाकर बोलो मोमिन सब बर्दाश्त करेगा, मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त। बोलो ना नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त। और जो करेगा हम बद्दुआ करते हैं, अल्लाह उसे बर्बाद कर देवे, बोलो आमीन। अल्लाह उसे तबाह कर देवे, बोलो आमीन। अल्लाह उसके टुकड़े टुकड़े कर देवे, अल्लाह उसको दुनिया आखिरत में फांसी के तख्ते पर लटका देवे। हम नबी से मोहब्बत करते थे, करते हैं। मोहब्बत किसको कहते हैं? एक वाकया सुन लो फिर हम नतीजे पर आ जाएंगे। सब करते ना मोहब्बत, तो करते ना? अरे हाँ बोलो ना, तो मेरे को अच्छा भरोसा हो जाए, बोलो ना करते ना। अरे बोलो ना मुस्तफा का दामन। उहद मैदान, आपको मालूम है ना उहद मैदान? कौन सा मैदान? बदर के बाद जो गजवा हुआ, वो गजवे का नाम गजवा उहद। भाई उहद पहाड़ तो बहुत सोने देखा होगा, उम्रे में गए होंगे, हज में गए होंगे, बोलो ना उहद पहाड़ देखा कि नहीं देखा? हमारे नबी ने तश्कील फरमाई, आ जाओ मेरे साहबा उहद मैदान में आ जाओ। तवज्जो देना, तवज्जो है ना आपकी? हमारे नबी ने तश्कील फरमाई, आ जाओ उहद मैदान में आ जाओ। अरे कुर्बान जाओ, हमारे नबी ने ऐसी तश्कील की, जबान इतनी मुबारक थी, हमारे नबी ने ऐसी तश्कील की, अल्लाह ने उसी तश्कील को कुरान की आयत बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने उहद मैदान के मौके पर ऐलान फरमाया, आ जाओ। लेकिन तश्कील कैसे अंदाज में की? क्या फरमाया? वसारिऊ इला मगफिरह मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावात वल अर्द। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आ जाओ, आ जाओ, अल्लाह के रास्ते में आ जाओ। जो आएगा, जो आएगा, अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा, अल्लाह उसकी मगफिरत करेगा। ये तश्कील कौन कर रहे हैं? हमारे अल्लाह को इतनी पसंद है, अल्लाह ने 2 जगह कुरान में तश्कील बताई। ये 4था पारा पढ़ा मैंने। कौन सा पारा पढ़ा? 27वें पारे में फिर अल्लाह ने यही तश्कील का जिक्र किया। अल्फाज अलग है, बात वही है। अल्लाह ने फरमाया, मेरा महबूब ने कितने अच्छे अंदाज में फरमाया, साबिकू इला मगफिरह मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, आ जाओ, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह ऐसी जन्नत अता करेगा जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीनों के बराबर। मेरे दोस्तों कौन से मैदान की बात कर रहा हूं मैं? उहद। देखो उहद मैदान हो गया, बोलो मैं पूरे वाक्य पर नहीं जाता। उहद मैदान 70 सहाबा शहीद हुए। कितने सहाबा? 70 सहाबा। अच्छा एक बात बताओ, हमारे नबी को कितना गम होगा, कितना दर्द होगा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए कि हमारे नबी उहद पहाड़ के करीब, हमारे नबी उहद पहाड़, भाई बच्चों को कहो खामोश रहे, हमारे नबी उहद पहाड़ के पास है। सुनना, हमारे नबी को जब पता चला 70 सहाबा शहीद हुए हैं, सबकी लाश मुबारक रखी हुई है, हमारे नबी देखो यूं उठे, यूं उठकर धीरे धीरे कदमों से आगे गए। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, उलमा किराम लिखते हैं, एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, उससे कई गुना ज्यादा नबी अपने उम्मती से मोहब्बत करते हैं। सहाबा किराम की लाशें मुबारक रखी हुई। सुनना, हमारे नबी आए, अरे बोलो ना हमारे नबी आए। पहले सहाबी, सुनो, पहले सहाबी, सारे सहाबा किराम के जनाजे मुबारक रखे हुए हैं, हमारे नबी आए, वो पहले सहाबी को देखा, हमारे नबी की आंखों में आंसू आए। फिर नंबर 2 पर आए, फिर नंबर 3 पर आए, फिर नंबर 4 पर जब आए तो सहाबी के चेहरे पर कपड़ा रखा हुआ, यानी चेहरा नहीं नजर आ रहा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते रोते पूछा, मन हादा, ये कौन है, कौन है? सारे सहाबा के चेहरे खुले हैं जो शहीद हो गए, इनका चेहरा बंद क्यों है? हजरत बिलाल करीब में खड़े थे, कहा अल्लाह के रसूल मन देखो, आगे चलो। कहा लेकिन मन आधा है कौन? हजरत बिलाल ने कहा आप मत पूछो कौन है, वरना आप बहुत रोएंगे, ये आपका बहुत चहीता है, आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, दुआ करते करते आप आगे बढ़े, आप ये ना पूछे ये कौन है। हमारे आका साहब ने फरमाया, बिलाल मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मुझे बताया नहीं जाएगा कौन है। तो कहा ये हजरत अम्मार है। बोलो
کون؟ عمار، پورا نام عمار ابن زیاد، 25 سال کے صحابی، بولو کون؟ حضرت عمار۔ تو ہمارے نبی نے کہا میرا عمار، میرا عمار، یہ کہہ کر ہمارے نبی بیٹھ گئے۔ حضرت بلال نے کہا چہرہ مت دیکھنا، پیشانی سے لے کر یہاں تک 80 تلوار کے زخم لگے ہوئے ہیں، چہرہ نظر نہیں آتا، صرف آنکھیں نظر آتی، باقی کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ میرے نبی چادر مت ہٹانا، لیکن ہمارے نبی بیٹھے اور کفن کے کپڑے کو، بولو کفن کے کپڑے کو، صرف آنکھیں نظر آتی۔ ہمارے نبی رونے لگے، ہاں عمار، میرا عمار، بولو بولو یہ میرا عمار۔ کیا روئے ہوں گے ہمارے نبی، میرا عمار، کیا محبت سے روئے ہوں گے میرا عمار۔ سارے صحابہ بھی جمع ہو گئے، سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ میرے پیارو، آج حدیث کی کتابوں میں لکھا سارے صحابہ جمع ہیں، اچانک سب نے دیکھا عمار نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، بولو سبحان اللہ، شہید ہو گئے، پورے بدن کا لہو ختم ہو گیا، چہرہ نظر نہیں آتا، آنکھوں کو، جیسے آنکھوں کو کھولا سارے صحابہ نے کہنا شروع کر دیا یا رسول اللہ ان عمار قد فتح عینیہ، اللہ کے رسول ہم نے دیکھا، ہم نے عمار نے آنکھوں کو کھولا، ان کی آنکھیں بند تھی، ابھی عمار نے آنکھوں کو کھولا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے نبی نے روتے روتے صحابہ کو دیکھا، کہا جو تم نے دیکھا میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ عمار نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اور قربان جاؤ ہمارے نبی قریب گئے، کہا عمار تو نے آنکھوں کو کھولا، اس کا مطلب تیرا کوئی ارمان رہ گیا، دنیا میں تیری کوئی تمنا رہ گئی۔ ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا عمار مانگ لے، تیرا جو بھی ارمان رہ گیا مانگ لے، آج امتی مانگتا جائے گا، نبی پورا کرتا جائے گا، مانگ لے۔ حضرت عمار نے آنکھوں کو تو کھولا ہی تھا، ہاں چہرے انور پورا چھلنی تھا، دھیرے سے اپنی گردن کو ہٹایا، سارے صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول انہوں نے اپنی گردن کو بھی ہٹایا، ہمارے نبی بیٹھے تھے، ارے عمار نے یوں گردن کو اٹھایا اور نبی کی گود میں رکھ دیا، وہ نبی کی گود میں رکھ دیا، اور آنکھیں پھر بند کی، اور ایک آواز آئی فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ سارے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول انہوں نے اپنی تمنا تو بتائی نہیں، بھائی انہوں نے آنکھیں کھولی، اپنی تمنا تو بتائی نہیں، اپنا ارمان تو کچھ بتایا نہیں۔ قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا ارے عمار اپنی تمنا بتا کے چلا گیا، عمار نے اپنی مرضی بتا دی، سب نے کہا کیا؟ کہا عمار یہ بتا کے چلا گیا میری تمنا تھی، جیا تھا محمد کے قدموں پر، مرا بھی محمد کے قدموں پر، جیا تھا نبی کے قدموں پر، مرا بھی، یہ محبت ہے، جئیں گے تو مصطفیٰ کے دامن میں، مریں گے تو مصطفیٰ کے۔ اب ایک مرتبہ بولو کون کون نبی سے، یہ میں نے محبت کی ڈیفینیشن بتا دی۔ اور ایک بات جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ نبی سے محبت کرتا ہوگا، جو اللہ کا ہوگا وہ محمد کا ہوگا، جو محمد کا ہوگا وہ اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے اگر تم اللہ سے محبت